ਹੈਲੋ ਦੋਸਤੋ, ਜੁਗਤੋ ਜੁਗਤੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਆਮਦੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਜੁਗਤੋ ਜੁਗਤੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਾਰਾਂਗੇ ਕੁਝ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਜੁਗਤਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਹੱਸੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲਮਹਾਤ ਮੈਸਰ ਹੋਣ। ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਤੀਕਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕੁਰਜ਼ਾ ਲੱਥ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਅੱਬੇ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਪੁੱਤਰ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸੀਏ, ਮੈਂ ਤੇ ਹਜੇ ਤੀਕਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਂਦਾ ਫਿਰਨਾ ਵਾ, ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਤੇ ਖਰਚੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ, ਮੈਂ ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ। ਅੱਗੋਂ ਅੱਬਾ ਜੀ ਆਪਣੀ ਦੁੱਖ ਭਰੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੋਨਿਆ ਤੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਵੇ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤੀ ਗਾਲਾਂ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਮੁੜ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਗਾਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਤੀ ਸਮਝਣ ਹੋ, ਮੈਂ ਜਾਗਦੀ ਗਾਲਾਂ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਪਿਓ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸਿਆਣੇ ਸਹੀ ਕਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਮੁੜ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕਿਸੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਕੁੜੀ ਦਾ ਮੁੜ ਚੱਕਰ ਸੀ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਛੱਡ ਛੋੜੀ, ਸਿਗਰਟ ਨੋਸ਼ੀ ਵੀ ਛੱਡ ਛੋੜੀ, ਸ਼ਤਰੰਜ ਵੀ ਛੱਡ ਛੋੜੀ, ਅਵਾਰਾ ਗੱਦੀ ਵੀ ਛੱਡ ਛੋੜੀ। ਤੇ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧਾ ਸਾਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੋਹਣੀ ਲੰਘਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਕਿਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਿੱਧੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਜ਼ਾਬ ਚ ਪਾ ਛੋੜਦਾ। ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਪਠਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕੁੱਤੇ ਉੱਤੇ ਮਜ਼ਮੂਨ ਲਿਖ ਕੇ ਲਿਆਣਾ ਸੀ ਤੇ ਪਠਾਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕੁੱਤੇ ਉੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਪੈਨ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਕੁੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਵੱਢਣ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੁੱਤੇ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਦਾ ਮਜ਼ਮੂਨ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਾਪੀ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਚੋੜਿਆ ਸੂ। ਦੂਜੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜੋ ਸ਼ਖਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਸੰਦ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਮੇਰਾ ਹੀਰੋ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪੁੱਤਰਾ ਮੈਂ ਤੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਰਾਜ਼ੀ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਮੇਰਾ ਹੀਰੋ ਵੇ, ਤੇ ਇਹ ਤੂੰ ਤੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਕੀ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖ ਛੋੜਿਆ ਸੂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਅੱਬਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਆਪੇ ਲਿਖਣਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਖਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਪਿਓ ਦੇ ਲਿਖ ਛੜੀਏ, ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲੇ ਗਿਆ ਤੇ ਮਾਂ ਪੁੱਛ ਸੂ, ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਅੱਜ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ। तो बच्चे ने क्या, कुछ नहीं माँ सीखना की है, बस इन्ना की सीखिया है कि अज फिर स्कूल गया तो कल फिर स्कूल जाना पैना है, चंगी तुसीं मैनूं मुसीबत पा छोड़िया सो। एक आर्टिस्ट ने जनाब खूबसूरती का काटेज का पेंट कर रहा सी। तुम मेरे काटेज की तस्वीर बनाने के बाद क्या करोगे, काटेज के मालिक ने पूछा। उसको एक नुमाइश में भेजूंगा। आर्टिस्ट ने जवाब दिया, वाह, पर तो इसे बहुत सारे लोग देखेंगे। आर्टिस्ट बोला, ये बात तो सच है मालिक मकान, तो फिर ऐसा करो तस्वीर में एक जुमला भी लिख दो, ये मकान किराए के लिए खाली है। 10वीं क्लास का बच्चा, बेटा बस इस साल मेहनत कर ले, फिर सारी जिंदगी आराम ही आराम करना है। 11वीं क्लास में हुंदा है तो फिर माँ प्यो कहते हैं, बेटा 2 साल ठीक से पढ़ाई कर ले, फिर आराम ही आराम रहना सारी जिंदगी। पुत्र ग्रेजुएशन च आंदा तो बस फिर माँ प्यो फिर कहते हैं, बेटा बस डिग्री अच्छी तरह पूरी कर ले, पर फिर आराम ही आराम रहेगा। तो ग्रेजुएशन तो बाद फिर पोस्ट ग्रेजुएशन च माँ प्यो कहते हैं, बेटा कर ले पढ़ाई, फिर सारी उम्र तेन सुकून ही सुकून है। फिर पोस्ट ग्रेजुएशन तो बाद जरा वे माँ प्यो पुत्र नूं जदों आराम करन लगदा, मारदे चित्तर ठांदे आ, नलायक इत्थे ही पिया रवेगा कि कम ते भी जाएगा, कम ते तेरा प्यो जासू। ते ऐ उहनूं सारी जिंदगी आराम मिलिया वे, जेड़ा उहनूं सारी जिंदगी कह कह के कि तू आराम कर ले। जिस रेड नूं चोर दे मुंडे नूं पुछया कि तू मुड़ अपनी इन्हां चीज़ां तो बाज क्यों नहीं आंदा हैगा, तेरा प्यो तेरी क्यों नहीं रहनुमाई करदा हैगा। ते चोर दे प्यो ने कहा कि भाई जी मैं तो रहनुमाई बड़ी इहनूं करना वा, लेकिन इन्ना समझाना, लेकिन ये हर दफा ही फड़िया जांदा वा। मुंडा ने कहा, जी याद है हम पहली बार कित्थे मिले सी। लड़की ने कहा, ट्रेन रुकी सी ते मैं तू मेरे हल वेंदा पिया सी, नज़रां च नज़रां मिलियां, तू मेरे हल हथ वधाया ते तू मैनूं कहा अल्लाह दे नां ते कुछ दे बाबा, ते उत्थे पहली दफा मिले सी। बंदे ने बुढ़ी नूं पुछया कि आलू के पराठों में आलू तो नजर नहीं आ रहे, बीवी चुप करके खाओ, कश्मीरी पुलाव में कश्मीरी पुलाव थोड़ी नजर आता है, जो आप कहते हो आलू के पराठों में आलू नजर नहीं आ रहे। जज साहब ने मुलजम से पूछा, तू कौन सा जुर्म किया। मुलजम आख्या, जज साहब मैं तो फुटबाल ही खेल रहा सी। तो जज साहब ने मदई ने पूछा, हाँ भाई तेरा की जुर्म आ। तो उन्हें मुलजम आख्या, सर जी जो फुटबाल नूं खेल रहा सी, मैं ही फुटबाल सी। मुंडा शादी से पहले लड़की को देखने गया, पहली दफा मुलाकात की, हिचकिचाहट, कुछ देर चुप रहे। आखिर मुंडे ने अपने आप को जरा पढ़िया लिखिया शो करवाया। पढ़िया लिखिया शो करवाने वास्ते उन्हें कुड़ी ने पूछा, इंग्लिश चलेगी। कुड़ी शर्मांदे हुए क्या बात कर दी तन्ने, अगर मूंगफली और सोडा साथ हो तो देसी भी चल जाएंगे, इंग्लिश क्या चीज़ आ। मुख्तलिफ बीवियाँ अपने शोहरों से लड़ते हुए, पायलट की बीवी, ज़्यादा मत उड़ो समझे तुम। टीचर की बीवी, मुझे मत सिखाओ स्कूल नहीं ये। डेंटिस्ट की बीवी, दांत तोड़ के हाथ में दे दूंगी। डॉक्टर की बीवी, तबीयत दुरुस्त कर दूंगी। MBA की बीवी,
माइंड योर ओन बिजनेस। CA ACCA CFA ICMA CIMA इन्ना दी बुढ़ियां पहले बुढ़िया अपनी तलीम ते पूरी कर ले, पास से हो जा। पहला तालिब इल्म मुझे अंग्रेजी के प्रोफेसर की आदत बहुत पसंद है। दूजा तालिब इल्म हैरान होकर ओ की आदत है ओदी। पहला तालिब इल्म वो क्लास में दाखिल होता ही सबसे पहला मुझे बाहर निकालते हैं, तू बाहर दफा हो जा नालायक पांडे। मैनू बहुत पसंद है कि मैनू आंदे ही बाहर कर देंदा, मैनू सारा दिन क्लास खज्जल खराब नहीं होना पैंदा। शादी के बाद शोहर तुम्हारी अम्मी की भी मजाक करने की आदत अभी तक गई नहीं। बीवी क्या कह दिया अम्मी ने? ओ शोहर आज मुझसे पूछ रही थी मेरी बेटी से शादी करके खुश तो हो ना। और तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई, वाह 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 वाह। समोसे में चटनी डाली चाट बन गई, वाह 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 वाह। क्या बात करते हो जी। दो आदमी सड़क के किनारे पर यूं ही खड़े थे। पहला आदमी बड़े बड़े फंसे मेरी बीवी और महबूबा साथ साथ आ रही है। दूसरा आदमी किस कदर अजीब इत्तेफाक है, यही बात मैं कहने वाला था कि मेरी बीबी और महबूबा साथ साथ आ रही है। आदमी पुलिस पार्क में ऐसे क्यों बैठे हो? आदमी हम दोनों शादीशुदा हैं, पुलिस वाला तो घर में बैठो। आदमी इसका शोहर और मेरी बीवी बुरा मानते हैं इसलिए हम दोनों पार्क में बैठे हैं। बीवी रात को देर से घर आई और चुपचाप बेडरूम का दरवाजा खुला तो देखा कि कम्बल में 2 की बजाय 4 टांगे नजर आ रही हैं। उसने क्रिकेट बैट उठाया, जोर जोर से मारना शुरू हो गई। जब मार मार के थक चुकी तो पानी पीने के लिए किचन में गई तो देखा उसका शोहर वहाँ बैठा मैगजीन पढ़ रहा था। और शोहर बोला तुम्हारे अम्मी अब्बू आए थे, मैंने उनको बेडरूम में सलाह दिया जाकर मिल लो। नतीजा और करो शक तो वेखो स्टार प्लस ते अपनी माँ प्यो कटी जाते हथों। 2 सिख दोस्तों को खेतों में बंब मिल गया। पहला सरदार आप या बंब जरा पुलिस नूं दवांगे, दूजा सरदार नहीं यार कोई बंब रस्ते च फट गया तो फिर पहला सरदार यार आप झूठ बोल दवांगे कि बंब सानू जरा वे इको ही मिलया। पठान ने भागते हुए बस पकड़ी और ड्राइवर से पूछा, पठान ये बस तेरी बहन की है? ड्राइवर नहीं, पठान तो तेरी माँ की है। नहीं, पठान तो फिर चढ़ने क्यों नहीं दे रहा था? एक पठान खुदकुशी पर तकरीर कर रहा था। जज्बाती होकर कहने लगा खुदकुशी हराम है, जुल्म है, गुनाह है, इससे तो बेहतर है बंदा अपने आप को गोली मार ले। ऐसा भी होता है। स्कूल बस में ड्राइवर के पीछे बैठा पप्पू खुद से बातें कर रहा था। अगर मेरी माँ हथनी होती, बाप हाथी होता तो मैं एक छोटा सा हाथी होता। अगर मेरी माँ एक चिड़िया होती, बाप चिड़ा होता तो मैं एक चिड़ा होता। अगर मेरी माँ शेरनी और बाप शेर होता तो मैं एक छोटा शेर होता। ड्राइवर को गुस्सा आ गया, बोला अगर तेरी माँ कमीनी और तेरा बाप कंजर होता तो क्या होता? पप्पू बोला तो वो बस ड्राइवर होता। वाह पप्पू वाह, क्या बात करते हो पप्पू। पप्पू और टीचर मजा आया। क्लास के ग्रुप फोटो देखते हुए टीचर बोली जब तुम बड़े होकर ये तस्वीर देखोगे तो कहोगे ये राजू है जो अमेरिका चला गया, ये नोमी है जो लंदन चला गया, और ये है पप्पू जो वहीं का वहीं रह गया। पप्पू को गुस्सा आया और बोला मैं ये भी तो कहूँगा ये वो मिस है जो मर गई, जो हमारे ज़माना में कभी जिंदा हुआ करती थी। मैडम का नक चढ़ गया कि मैंने पप्पू को बात ही क्यों की। और शेर खवार घुटनों के बल चलने वाले बच्चे ने पहले लैंप तोड़ दिया, फिर एस्टरे तोड़ दिया, टीवी ट्राली के शीशे पर मार दी। नौजवान माँ अपने गोद में उठाते हुए बच्चे से गुस्से से बोल दी बस अब तो फैसला हो गया, तुम इस घर के पहले और आखिरी बच्चे हो। यानी माँ का नुकसान हुआ तो उसने कहा कि तो बच्चे ही नहीं जमने, या तो आखिरी ही बच्चा। और पागल ने डॉक्टर से कहा हम आपको पहले डॉक्टर हैं जो ज़्यादा पसंद करते हैं, नया डॉक्टर। वो कैसे? पागल इसलिए कि आप बिल्कुल हमारे जैसे दिखाई देते हो। जा डॉक्टर पागल, पागल ने तेरे को पागल कर दिया। लड़की और लड़का, एक खूबसूरत लड़की बस स्टैंड पर खड़ी थी। लड़का चांद तो रात को निकलता है, आज दिन में कैसे निकल आया। लड़की उल्लू तो रात को बोलता है, आज दिन में कैसे बोल पड़ा। और जा उल्लुआ बिस्ती करवा के बैठ गया तो लड़की पे। बट्टे ने कहा उस वक्त की बात और थी डैडी, आजकल हर जगह बकायदा हिसाब किताब रखा जाता है। उसने कहा काहे का हिसाब किताब, तो तनहा आती नहीं लग पल्ले जाती है। तो बट्टे ने कहा अब्बू घर अपनी फैमिली पे लगाया करो, लोगों की फैमिलियां पे लगाओगे तो पल्ले ही लग जाएगी। और जियो शेर पुत्रा। एक साहब अपने दोस्त से अपने बेटे की शिकायत कर रहे थे। बरखुरदार ने जब से यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया पढ़ाई की तरफ ध्यान देने की बजाय लड़कियों के चक्कर में पड़ा रहता है। लॉन में लड़कियों के साथ, लाइब्रेरी में लड़कियों के साथ, कैंटीन में लड़कियों के साथ, हत्ता कि यूनिवर्सिटी से बाहर भी लड़कियों के साथ घूमता रहता है। अगर मुझे पता होता कि यूनिवर्सिटी में यही कुछ होता है तो उसे दुकान पर बैठाता और खुद यूनिवर्सिटी दाखिला लेता। और जियो डड्डी जी जिंदाबाद, तेरी सोच को सलाम। नौजवान ने अपनी महबूबा से कहा तुम्हें मेरी तनख्वाह का तो पता है, तो क्या शादी के बाद तुम इस तनख्वाह में गुजारा कर लोगी? लड़की ने थोड़ा सा सोचते कहा मैं तो चलो जैसे तैसे गुजारा कर लूँगी, लेकिन तुम्हारा गुजारा कैसे होगा? जियो महबूबा ला डुब्बी अपने मशूक नू। और टीचर ये बच्चा तुम्हारा क्या लगता है? पप्पू ये मेरा दूर का सगा भाई है। टीचर क्या मतलब? पप्पू इसकी और मेरे दरमियान 7 बहन भाई का फर्क है। और जी पप्पू
एक उम्मीदवार का इंटरव्यू हो रहा था और उसे यकीन था कि वो ये मुलाजमत ज़रूर हासिल कर लेगा। इंटरव्यू के आखिर में इंटरव्यू लेने वाले साहब ने पूछा, क्या अच्छा ये बताओ गापू जी गम का क्या मतलब है? उम्मीदवार ने बहुत सोचा, फिर मैं उसी से बोला, इसका यह मतलब है कि मैनू नौकरी हुण नहीं लभनी। अल्लाह के बंदे गापू जी का मतलब नहीं है तो कोई ठुल्लू मार, तू तो दिल्ली छड़ गया। पहला सरदार है यार तेरी सुहागरात कैसी गुजरी, दूजा सरदार यार क्या बताऊं बहुत मजा आया, पहला सरदार फिर भी बताना। और दूजा सरदार जिंदगी में पहली बार नंगी लड़की देखी और हा 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 हा। जा सरदार सारी उम्र तो सरदार ही रख होते हैं। दो लड़कियां, शहरी लड़की अपनी शादी के बारे में पंजाबी लड़की से, मेरे शौहर ने बड़ी मुश्किल से मुझे पाया है। पंजाबी लड़की ओ शिट, तुम्हें पता ही नहीं शहर की हो कभी, तो बड़ी बेवकूफ़ है। अगली बार अपने शौहर को कहना थोड़ा सा तेल लगा ले, बड़ी आराम से पाया जाएगा। और जी पंजाबी कुड़ी छानी तू। काली बीवी अपने शौहर से खिड़की पर पर्दे लगवा दें कि पड़ोसन का मियाँ मुझे देखना ले, खावन सिर्फ एक बार देख लेने दो, खुद ही पर्दे का बंदोबस्त करवा देगा। जी शौहर जिंदाबाद। और दो औरतों ने ड्राइविंग सीखना शुरू कर दी। उनके शौहर आपस में मिले तो एक बोला, मेरी बीवी को तो पता नहीं क्या हो गया है, रात को मेरा पकड़ कर कहती है पहला गेर दूसरा गेर। दूसरा बोला, ये तो कुछ भी नहीं, मेरी बीवी दोनों टांके उठाकर कहती है टैंकी फुल करो टैंकी। एक दफा शौहर और बीवी बाग में सैर कर रहे थे और पास से बबलू गुजरा और बोला, अंकल कल वाली ज्यादा खूबसूरत थी। उसने बबलू ने तो किया मजाक। उसके बाद अंकल 2 दिन से खाली पेट घर से बाहर बबलू को ढूंढ रहा है कि बबलू ने जो मुझे छितर पाया है इसके इलाज कर। उस्ताद भैंस की कितनी टांगे होती हैं शगीद सर, ये तो कोई बेवकूफ़ भी बता देगा। उस्ताद इसीलिए तो तुमसे पूछ रहा हूँ। जी उस्ताद तेरे शगीद भी बेवकूफ़ थे, तो आप भी इंटेलिजेंट। माँ मुन्ने, ये दरवाजे पर गंदे हाथों के निशाना तो तुम्हारे हैं। बेटा जी नहीं अम्मी जान, मैं तो लात मार कर दरवाज़ा खोलता हूँ, हाथ से थोड़े खोलता हूँ। दादा पुत्ते से का ज़माना था जब मेरी जेब में 10 रुपए होते थे, मैं स्टोर से घी दूध दालें सब कुछ ले आता था। पत्ता दादा जान अब ये हरकतें नहीं चलेंगी, अब वहाँ कैमरे लगे, अब चोरी करना बंद है। दादा लख लाना तो तेरे थे। जहाँ देखो इश्क के बीमार बैठे हैं, 1000 मर गए लाखों तैयार बैठे हैं, बर्बाद करके अपनी तलीम लड़कियों के पीछे। फिर कहते हैं मौलवी साहब दुआ करो, बेरोजगार बैठे हैं। ला 10 इतने होन कोई करे की। सरदार का रात को सिगरेट पीने का दिल चाह रहा था। सरदार ने हर जगह माचिस ढूंढी पर कहीं नहीं मिले। आखिर नाउम्मीद होकर मोमबत्ती बजाकर सो गया। और शाशदैया जो मोमबत्ती बजाई सी मुड़ो सिगरेट तुला चढ़। जिसने जल्दबाजी में शादी की उसने अपना सारा जीवन बगाड़ लिया, और जिसने सोच समझ कर शादी की उसने कौन सा तीर मार लिया। वाह शहजादा। बाज़ बीवियाँ इतनी शक्की मजाज होती हैं, अगर उनका शौहर नेक और शरीफ भी हो जाए तो उसे ताना मार देती हैं। अच्छा तो आजकल जनाब हूरों के चक्कर में है, बंदा होने नमाजा भी ना पड़े। बीवी शौहर से रात को मेकअप के अपने बाल खुले पूछती है, जानू मैं कैसी लग रही हूँ? शौहर कसम से बेगम अगर आयतल कुर्सी याद ना होती तो आज तो मैं तो मर ही जाता। डिड रोनी बुड्ढी, मर्द का 5 नगाती सपना, 6 डिजिट सैलरी हो, हफ्ते में 2 दिन छुट्टी हो, एक अच्छी सी गाड़ी हो, अपना जाती मकान हो, गूंगी बीवी हो जो देखने में कतरीना और काम करने में मासी सकीना हो। वाह 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 वाह, क्या बात है जी, क्या बात है। लड़का तुम्हारी तस्वीर इंटरनेट पर लीक हो गई है। लड़की बगैर दुपट्टे के, लड़का नहीं बगैर मेकअप के। लड़की हाय मैं बर्बाद होगी, मैं लुट गई, मैं लुट गई। अगर कोई कहे मोहब्बत से मुश्किल कुछ नहीं तो मैथ की किताब उसके मुंह पे मार और बोल साले आई नो भी करीब पढ़ लिया था, तीन पता लगे ओके कि मोहब्बत होती है। हर शादीशुदा मर्द की जिंदगी के 2 अहम मसले, घर वक्त पर पहुंच जाओ तो खाना गर्म और बीवी ठंडी मिलेगी, अगर घर पर पहुंचने में देर होगी तो खाना ठंडा बीवी गर्म मिलेगी। बड़े भाई की शादी उस ट्रक की तरह होती है जिसके पीछे सारी ट्रैफिक रुकी होती है। तो वड्या भरावा तू ब्याह कर छोड़ सू से फिर साडी वारी आ सू, क्यों सन मुर बुढ़िया कर सू आप तू हो सू। पाकिस्तानी फैमिलीज एक दूसरे से बहुत प्यार करती हैं। बीमारी का बंदा होता है, खिचड़ी पूरा घर खाता है। वाह जी वाह। एक शेख ने अरबी को खून देकर उसकी जान बचाई। अरबी ने उसे BMW का गिफ्ट किया। कुछ अर्सा बाद फिर शेख को जरूरत खून की पड़ी तो उसने दोबारा शेख ने खून दिया तो उसने उसको बबल गम दी। तो शेख ने उसको अरबी को कहा पिछली बार तो BMW दी थी तो अब बबल गम क्यों दे रहा है? तो अरबी ने बोला अब तो मेरी रगों में भी शेखों का खून है। एक मरासी जो है वो पढ़ लिख के जज बन गया। वो जब भी कोई भी मुकदमा आता तो वो सबसे पहले अगले बंदे की जात पूछता। तो फिर वो रश करता, मैं मरासी ये जट और ये मेरे सामने अपना केस लेके आया हुआ है। तो किसी मरासी को उसके रिश्तेदार को पता चल गया तो कोई मरासी जज है, उसने शोर डालना शुरू कर दिया, लो जी आज तो पता चलेगा जज वो है कि मैं हूँ।
वह जज वो है कि मैं हूँ। रीडर्स के सामने रोला पाना शुरू कर दिया। रीडर्स ने पूछा तेरा कोई केस है? कहता ना, मेरा कोई केस ना है। तो फिर रोला क्यों पाया? उसने कहा जी मैंने जज को मिलना है। जज को बताया गया कि बंदा बार बहुत रोला पा रहा है। वो कहता है जी मेरा कोई लेन देन नहीं है, लेकिन फिर भी मैं जो इससे मिलना चाहता हूँ। तो वो जज मरासी ने बुलाया उस दूसरे मरासी को, उसको बुला के कटहरे में पूछा तेरी बरादरी क्या है? तो उसने बड़े जोरदार और दाड़ कर कहा जज साहब सिर्फ जज ही होंगे हैं। और शहजादा मरासी आ तो जज जी छूट कर आ गए हैं सोनिया। तो वो जज मरासी ने बुलाया उस दूसरे मरासी को, उसको बुला के कटहरे में पूछा तेरी बरादरी क्या है? तो उसने बड़े जोरदार और दाड़ कर कहा जज साहब सिर्फ जज ही होंगे हैं। और शहजादा मरासी आ तो जज जी छूट कर आ गए हैं सोनिया।